Good morning, student. The topic which I have brought is from the semester 4 of core 9, and now we will discuss the modern political thinker, that is Hegel, and we will discuss the liberal theory of Hegel. So the first we will discuss what was the idealistic thought of the Hegel, and then we will come his political thought. So before discussing anything, first we will have to discuss the historical background of the Hegel, which type of a person he was. So the George Wilhelm Friedrich Hegel is the most self-confident philosopher who ever lived. He aimed at nothing less than a complete reconstruction of the modern thought. The two main points around which the thought of the Hegel centers are the dialectical methods and the idealization of the nation state. The Greek dialectic. The sophists were the first philosopher to employ this term dialectic. According to them, the dialectic was not a method of destroying known truth, of discovering a new truth. And Hegel means of dialectic, according to the Hegel, dialectic was not merely a process by which local ideas develop. Dialectical, a rational process. According to Hegel, the unfoldment or development of the reason has taken place not in a positive or a straight manner, but in a spiritual or a zigzag form. Law of dialectical. The law of dialectic was the law of consideration. Hegel explained this law by the free term being nothing and becoming. Social dialectics, to elaborate the process, and the social level diplomacy call into being a democracy and form the clash between the two results. Constitutional monarch. Similarly, family provides the antithesis and from the clash between the two states. So the real is the rational and the national is a real political dialectic. Hegel rejects the view of the feature that only the ideal state is a rational, whereas existing states are irrational. The result of the dialectic, in short, dialectic speaks to explain the story of the continuous development of the spirit or a reason. It empathizes the essential community of the historical process. Now, till now we have discussed the background of the Hegel, and now we will come to focus that how Hegel has given a lot to the society. तो डॉक्टर आशीर्वादम लिखते हैं कि चाहे उनका नाम कुछ भी रहा हो, आदर्शवादी परंपरा का इतिहास कहीं कहीं खंडित होते हुए भी बहुत लंबा है, और इस विचारधारा का प्रारंभिक रूप प्राचीन यूनान की राजनीतिक विचारधारा में मिलता है। तो रोमन काल और मध्य युग में भी कोई प्रमुख विचारक आदर्शवादी चिंतन के साथ नहीं हुआ। 17वीं शताब्दी के पुनर्जन्म काल में पुनः आदर्शवादी के दर्शन होते हैं। आधुनिक युग में भी प्रथम महत्वपूर्ण आदर्शवादी विचारक रूसो ही हुआ, जिसने अपनी राजनीतिक विचारधारा के आधारभूत तत्व यूनानी राजदर्शन से ही लिया है। यद्यपि आधुनिक युग में भी हीगल के अतिरिक्त थॉमस ही ग्रीन और ब्लेजल और ब्रोकिस ने भी अपने आदर्शवादी चिंतन का प्रतिपादन किया है। तो अगर हम हीगल की जीवन परिचय को देखते हैं तो ये देखते हैं कि उनका जन्म जर्मनी में हुआ था और 1770 में हुआ था। एक उच्च राजा कर्मचारी का पुत्र होने के कारण हीगल का पालन पोषण तथा शिक्षा व्यवस्था ढंग से हुआ, और उन्होंने अपने अध्ययन काल में ही उस पर पूरा यूनानी दार्शनिक के विचारों का गहरा प्रभाव रहा। 1793 में स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के बाद उसने
विभिन्न शैक्षणिक पदों का कार्य किया। जो उनकी रचनाएं थी उसमें फिलॉसफी ऑफ द लॉ, फिलॉसफी ऑफ द हिस्ट्री, साइंस ऑफ लॉजिक, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, इस तरह की उनकी बहुत सारी रचनाएं भी हैं जो उन्होंने लिखी थी। हीगल ने इन ग्रंथों को प्रकट दार्शनिक विचारों और दुर्बलिक, अस्पष्ट और विलस्ट है। वियर ने भी इसकी ओर संकेत करते हुए कहा है कि हीगल जितना महत्वपूर्ण दार्शनिक है, दुर्भाष्य उनसे समझा उतना ही कठिन है। हीगल की जो राजनीतिक विचारधाराएं हैं उसके प्रमुख रूप में एक आदर्शवादी विचारक है और आदर्शवाद का चरम रूप हीगल के दर्शन में ही मिलता है। हीगल के राजनीतिक दर्शन को सही रूप में समझने के लिए आदर्शवाद के प्रमुख सिद्धांतों को ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है। तो प्रोफेसर सबाइन ने यह कहा कि हीगल की राजनीतिक विचारधारा का महत्व दो बिंदुओं पर केंद्रित है। एक है द्वंद्वात्मक प्रणाली और दूसरा है राज का आदर्श स्वरूप। तो हीगल के अनुसार मानवीय सभ्यता, प्रगति या विकास कभी भी एक सीधी रेखा के समान नहीं होता। जिस प्रकार प्रखंड तूफान में थपड़े खाते हुए एक जहाज अपने मार्ग बनाता है, उसी प्रकार से मानव सभ्यता में भी अनेक टेढ़े मेढ़े रास्ते होते हैं और उसे आगे बढ़ती है। सर्वप्रथम यूनानी लोगों ने भी अपने विचार विमर्श में द्वंद्वात्मक प्रणाली को अपनाया था और इस प्रणाली के आधार पर ही आपसी कथन, तर्क और प्रतीक तर्क द्वारा सत्य को प्रमाणित करते हुए नवीन सत्य की खोज करते थे। अब हम देखते हैं कि इनकी द्वंद्वात्मक प्रणाली के आधार पर हीगल समाज तथा राज के विकास का अध्ययन करता है और वो मानता है कि यूनानी राजवाद थे और धर्म राज उसके प्रतिवाद और राष्ट्रवाद उसका एक साम्यवाद होगा। तो द्वंद्वात्मक पद्धति की विशेषताएं जो हैं वो इस प्रकार हैं कि हीगल द्वारा प्रतिपादित द्वंद्वात्मक प्रणाली को पूर्णतः समझने के लिए उसकी विशेषता का अध्ययन आवश्यक है। तो उनकी प्रथम विशेषता यह है कि ये स्वसत प्रेरित और स्वसत संचालित स्थिति है और इसके आधार पर वह निरंतर प्रतिगामी है। दूसरा है द्वंद्वात्मक प्रणाली के व्यवस्थित विचार से संबंधित है। मानव पनत के ईसाई धर्म की मान्यता के विरुद्ध हीगल द्वारा मानव प्रगति के विचार का प्रतिपादन किया गया है और इस संबंध में उनका विचार था कि मानव प्रगति को निर्धारित करने वाला तत्व विश्वनात्मक का विवेक है। तीसरा है विशेषता जो है वो है हीगल का यह मान्यता है कि प्रगति या विकास दो परस्पर विरोधी वस्तुओं या शक्तियों के द्वंद्व अथवा संघर्ष का परिणाम है। चौथा है विशेषता कि हीगल की यह मान्यता है कि संघर्ष की इस समस्त प्रतिक्रिया में विचार को ही प्रमुख स्थिति प्राप्त होती है। द्वंद्वात्मक प्रणाली के उपयुक्त अध्ययनों में हमें ज्ञात होता है कि हीगल के अनुसार सामाजिक प्रगति विरोधी तत्व के मध्य से ही होते हैं और ये विरोधी तत्व आपस में टकराते हैं और इन्हें टकराव से ही एक नई विचार का जन्म होता है और इसके सहयोगी और विरोधी दोनों ही प्रकार से तत्व और सम्मिश्रण होते हैं और वह उनसे बढ़कर स्थिति में होता है। तो हमने देखा कि उन्होंने जो अपना द्वंद्वात्मक पद्धति की आलोचना की है उसमें उन्होंने हीगल ने पद्धति को बहुत ही माने ढंग से अपनाया है और खींचातान करके इसे ऐसे तत्वों पर लागू करने की चेष्टा की है जिस पर इसे सफलतापूर्वक लागू नहीं किया जा सकता। और जो इसका द्वितीय यह है कि पद्धति के द्वारा विभिन्न वस्तुओं के बीच विरोध की निर्धार और अनावश्यक कल्पना की गई है। हीगल जहाँ भी है स्पष्ट रूप से विरोध के दर्शन करते हैं और वह तुरंत द्वंद्वात्मक विरोध के कल्पना के बाद ही प्रतिवाद और साम्यवाद के
त्रिकोण की स्थापना कर देता है। तृतीय है कि इस पद्धति में वैज्ञानिकता का नितांत अभाव है और इस पद्धति को अपनाते हुए मनमाने रूप से वाद प्रतिवाद साम्यवाद की स्थिति खड़ी करके किसी भी अच्छे व्यवस्था को अच्छी स्थिति कर सकता है। उदाहरण के लिए इस पद्धति के प्रयोग से स्वयं हीगल प्रतिशय के निरंकुश राजतंत्र को विश्व में सबसे श्रेष्ठ व्यवस्था सिद्ध किया था। तो इस पद्धति के विभिन्न दोषों को देखकर निष्कर्ष में यह रूप में वेबर आगे लिखते हैं कि जिस प्रकार 18वीं शताब्दी में प्राकृतिक कानून का सिद्धांत इसलिए लोकप्रिय था, इससे सब मनुष्य अपनी कल्पना के अनुसार पहले ही स्वीकार करके न्याय संबंधी सिद्धांतों को सिद्ध कर सकते हैं। तो अब आज हमने इनके द्वंद्वात्मक पद्धतियों की उपयोगिता, उसकी आलोचना, उसकी विशेषता के ऊपर गहन अध्ययन किया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो इसके इतिहास के दार्शनिक व्यवस्था के ऊपर में डिस्कशन करेंगे। तो हीगल के राज विषमय चिंतन और राज तथा स्वतंत्रता के विषय में हम उसी टॉपिक पे डिस्कस कर सकते हैं। तो हम लोगों ने आज देखा कि हीगल जो एक बहुत ही दार्शनिकवादी चिंतन होते हुए भी उन्होंने जिस समाज की स्थापना करने की बात की उसमें ये सी विशेषताएं के रूप में देखी जा सकती है।